Very good morning to all of you. So first class, that is the last classes, we have just introduced syllabus. What is the network theory syllabus in this your third semester? So all newly, that is the lateral students, hereby informed that actually syllabus. So I think all of you have a syllabus, and otherwise you have just go to the Google Classroom already. Last days I have sent that Google Classroom link and the code also. So it is mandatory for all the students to join that Google Classroom. So again, I will send you, no problem. So this is very mandatory for all the students to join the Google Classroom. And one thing, all of you just mute your microphone. If any questions, then you just unmute yourself. And today this is a very important class. And today two classes, regular, I think this second and third, two class. Okay. So, okay, now let's start the syllabus. Okay, total 39 students joined. Okay. So all of you have a note copy. Okay. So whiteboard, white screen is visible for all of you. Whiteboard. Yes. Anyone? Yes, sir. Okay, very good. So let's start from the basic. Okay. So all of you know that that the Kirchhoff's law. Today we will discuss about the Kirchhoff's law and how to just solve the network, means like using the mesh analysis, nodal analysis, and how to just current circulations. What are the sign conventions rule? Sign conventions rules. So today this is the very important class. Again, I am just telling you very important. So all of you will be concentrate. Okay. So you know the basic law, two law. There is the actually I will just in brief way I will just tell what is KCL and KVL, because I think all of you know it's very simple things. So KCL and KVL, you know the Kirchhoff, there is the two law, Kirchhoff's law. Kirchhoff's law, Kirchhoff's में दो लॉ होता है, पता है सबको. First one, that is the Kirchhoff's current law, also known as point law, also known as Johnson. So many. So Kirchhoff's KCL, short form, you know that KCL. So I think all of you know that current entering and leaving means, suppose this there is any junction at any point. Suppose this is your current I1. Now this is suppose current I2. Now this is the current leaving I3. Now this is again current I4. So all of you know that what is this? The algebraic sum. Total current at a point will be 0, or current entering and the current leaving will be equal. That is the I1 plus I2 is equal to I3 plus I4. मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि सब बहुत बेसिक है, और डिटेल्स के लिए जो है कि यूट्यूब में ऑलरेडी सारे वीडियोज अवेलेबल है. तो वो वीडियोज को भी देखना है, और मैंने चैनल का लिंक भी मैंने बहुत बार भेज दिया हूं, तो वहां से तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके डेली अपडेट रख सकते हो अपने आप को. ओके. और डेली क्लासेस जो होगी उसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा डेली. तुम लोग को क्या करना है कि अप टू डेट रहना है और नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाना है. सो दिस इज द KCL. I think all of you just what is this one? KCL. Okay. Now second one, that is the KVL, Kirchhoff's what? Voltage law, and other name is Kirchhoff's mesh law. So short form, that is KVL. So KVL के बारे में भी जो है कि लास्ट दिन मैंने डिस्कशन किया था, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को पता था कि KVL होता क्या है. So you know the algebraic sum of the product of current and resistance. Current and resistance in each of the conductor, any closed, this is very important, any closed path is required for the KVL. Closed. Okay. Or simply closed means, you know that the mesh in a network plus the algebraic sum of the what? EMF in that path will be zero. Okay. So simply this is the summations of IR and plus summations of EMF of that loop will be 0. So this is what KVL in short form. This is what? This is the KVL, Kirchhoff's voltage law, or simply Kirchhoff's mesh law. So okay.
दीज आर द थिंग्स बेसिक इंपॉर्टेंट केसीएल एंड केवीएल। और डिटेल मैंने फिर बता देता हूँ, डिटेल जो है कि सारा नोट्स जो है कि अवेलेबल ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम लोग ये बस शॉर्ट वे में जानते हुए चल रहे हैं। ओके, सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और राहुल कुमार फ्रॉम द रेगुलर बैच or anyone, just take a screenshot of the attendance. Okay, just take a screenshot of this attendance. Rahul Kumar, it's present or not? Rahul Kumar regular, Rahul Kumar regular student present. Yes sir. So just take a screenshot. Okay, okay, okay sir. So you know what is the sign conventions for the supposed battery is connected. So how to take the sign, suppose this is a positive or negative, a rise in voltage, fall in voltage. So just apply one sign convention throughout any electrical circuit. हमेशा एक ही साइन कन्वेंशन को यूज करना है, ठीक है। और जो मैं साइन कन्वेंशन बता रहा हूं, यही साइन कन्वेंशंस को हमेशा सारे नेटवर्क में एप्लीकेबल होगा, सारे नेटवर्क में अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन रूल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी हम लोग नोडल लगाएंगे या कुछ भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो साइन कन्वेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइन कन्वेंशन को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या है। साइन कन्वेंशन, sign convention rule for electrical network, sign convention rule for electrical network, sign convention rule for electrical network, ठीक है। ओके, सो सी है बैटरी इज कनेक्टेड ऑल्सो, यू नो IR ड्रॉप, दो चीज है हम लोगों के पास। सो मैं वन बाय वन करके बताता हूं। सपोज दैट सी हियर, दिस इज द बैटरी इज कनेक्टेड। सी, मैं पहले यहाँ पर बता देता हूँ, डायग्राम लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि साइन कन्वेंशन को हम लोग को कैसे लेना है। नेगेटिव टू पॉजिटिव, सी नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल and you are moving in that directions, negative to positive means what? Rise in voltage. What is this? This is the rise in voltage, rise in voltage। तो कभी भी जब हम लोग नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में जब बैटरी का मूव करते हैं तो हम लोगों को उस समय क्या लेना है? सपोज दिस इज ई, सो पॉजिटिव ई। ओके, अब यदि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर नेगेटिव उल्टा डायरेक्शन जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, यदि पॉजिटिव टू नेगेटिव यदि हम लोग जा रहे हैं, इट्स मीन दैट इज द फॉल इन वोल्टेज, फॉल इन वोल्टेज। सो उस समय हम लोग को क्या लेना है? दैट इज द माइनस ई लेना है, ठीक है। अब यदि हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्ट है, करंट, सी हियर दिस इज द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, और मोशन, यदि मोशन भी हम लोग करंट के साथ में कर रहे हैं, करंट देख लो इस डायरेक्शन में एंड मोशन इज द सेम डायरेक्शन, देन यू जस्ट कंसीडर हियर माइनस IR, ड्रॉप इज माइनस IR, minus IR. Suppose this is the R resistance. Okay. Now current is here, but you are moving in opposite direction. Moving in opposite directions. So you just consider that is the plus IR. So just ये जो मैंने बताया हूं कि इस चीज को ही याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को याद रख करके हम लोग सारे लूप में, जितने भी लूप में हम लोग KVL अप्लाई करेंगे, तो कभी भी साइन कन्वेंशन को लेकर के नेगेटिव और पॉजिटिव का जो कंसेप्ट है वो कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और राहुल जो भी अटेंडेंस होगा उसका स्क्रीनशॉट जो है कि बीच बीच में लेते रहना है, जो भी कोई स्टूडेंट आ रहा है तो। हाँ, लेकिन मैं फर्स्ट क्लास में ही कह दिया था कि बी पंक्चुअल, ठीक है। 10 मिनट 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद आओगे तो मैं फर्स्ट, जैसे आज 2 क्लास है तो फर्स्ट क्लास का एब्सेंट मान लूंगा, एक ही अटेंडेंस होगा काम, बस, ठीक है। तो हमेशा 5 मिनट तक में ज्वाइन कर लेना है किसी को भी। ओके, सो आई एम नाउ गिविंग, सपोज एक मैं दे रहा हूँ, एक लूप दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग सिंपली अप्लाई करके देखिए जो मैंने अभी बताया हूँ रूल को। सपोज सी है, मैं एक बना रहा हूँ सिंपल से एक मेश यहाँ पर दे रहा हूँ। मैं सारा डायरेक्शन अभी मैं बता देता हूँ, उसके बाद जो इसमें सिंपल हम लोग को इक्वेशंस लिखना है। नाउ अप्लाइंग द KVL और साइन कन्वेंशन रूल को भी यहाँ पर हम लोग का क्लियर हो जाएगा, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा 2 मिनट में। यहाँ से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा।
तो देख सकते हैं कि हम लोग के पास एक बेसिक नेटवर्क दिया मैंने, सपोज दिस इज E1, ये E1 है। नाउ दिस इज R4, ये करंट हम लोगों का I4 है। एंड नाउ ये करंट इंटर कर रहा है इधर, दिस इज व्हाट I1 है, और नाउ दिस इज व्हाट R1, और ये करंट का डायरेक्शन को देखना है, करंट इंटर कर रहा है इधर से। नाउ दिस इज व्हाट R2, एंड नाउ ये करंट का डायरेक्शन है सपोज, नाउ दिस इज व्हाट E2, और मैं डायरेक्शन सब कुछ दे दिया हूं यहाँ पर I3, और ये करंट इधर है और ये करंट लीव हो रहा है इस डायरेक्शन, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल मतलब मोशन को इस ऐसे ले लिया मैं, है ना, क्लॉकवाइज ले लिया, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस समय हम लोग जो इक्वेशंस को लिखेंगे सिंपल, जो मैंने ऊपर में जो ये रूल बताया हूं अभी, तो देखिए ध्यान से, मैं अभी इधर ट्रेवल कर रहा हूं, ये R1 में ट्रेवल कर रहा हूं, ध्यान से देखना, R1 पे ट्रेवल कर रहा हूं, ओके। सो R1 में देखिए करंट का जो डायरेक्शन है और मोशन भी मैं उधर ही कर रहा हूं। सो व्हाट, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, I1 R1। आगे बढ़िए, ध्यान से देखिए, अब जो है कि मैं मोशन है, करंट है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर जो करंट है हम लोगों ने I2 लेकर रखा, I2 करंट, तो क्या हो जाएगा माइनस I2, समझना है अभी अच्छे से इसको, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते हुए जाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, व्हाट इज हियर पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो व्हाट E2 माइनस E2, फिर आगे बढ़िए इधर, ठीक है। अब देखिए करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, मोशन हो रहा है इधर, मोशन हो रहा है इधर, देखिए ध्यान से, मोशन हो रहा है अपोजिट, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मोशन हो रहा है अपोजिट, दिस इज व्हाट, ये कौन सा रेजिस्टेंस यहाँ पर हम लोग R3, R3, ठीक है, R3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस I3 R3, फिर आगे बढ़िए इधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन व्हाट, प्लस E1, फिर आगे बढ़िए, मोशन जा रही इधर, करंट, करंट भी इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस I4, देख सकते हैं यदि कुछ गलती होगा तो आप लोग बता सकते हैं हमको लिखते लिखते, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरा हमेशा सही होगा, इजिकल टू 0। तो यहां तक ये जो मैंने साइन कन्वेंशन रूल्स फॉर द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में बता रहा हूं, यहां तक किसी को भी यदि डाउट है तो जस्ट आस्क मी, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी को भी डाउट है तो, ठीक है, और नहीं डाउट है तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। अभी मैंने यहाँ पर ऊपर में देखो, यहाँ पर मैं सारा रूल बताया हूँ कि क्या लेना है, और मैंने एक सिंपल से एक नेटवर्क में आप लोग के सामने रखा हूं, और उसमें मैंने वही रूल को अप्लाई किया हूं, और केवीएल को अप्लाई किया हूं। तो यहां तक किसी को डाउट है, नहीं डाउट है तो हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। और आप लोगों को जो है कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस, मैट्रिक्स, क्रैमर रूल, ये सब हमको लगता है कि आप लोग को आता होगा। क्रैमर रूल्स ये सब क्या आता है कि नहीं आता है, क्रैमर रूल्स, क्योंकि हम लोग नेटवर्क जब सॉल्व करते हैं नहीं आता है। एक्चुअली जब हम लोग नेटवर्क को सॉल्व करते हैं तो यू नो दैट जब हम लोग का मैट्रिक्स फॉर्म में, हम लोग जानते हैं कि जब 3 इक्वेशंस रहता है, 3 इक्वेशंस, ठीक है, एक्चुअली आना चाहिए सबको, क्योंकि ये +2 लेवल का है क्रैमर रूल, या आप फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर पढ़ चुके हैं, या पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, तो भी क्रैमर रूल हर जगह पढ़ना रहता है, ठीक है। सो ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहां तक मैंने जो बताया हूं, केसीएल, केवीएल, साइन कन्वेंशन, ये कंप्लीट, ओके। सो एक्चुअल में हम लोग अभी बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस, और वहां पर हम लोग क्रैमर रूल्स का अप्लाई करके भी हम लोग करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि बीच बीच में आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ स्क्रीन का, और ऐसे भी मैं जो है कि जो पढ़ा रहा हूँ ये सारा वीडियो तो मिल ही जाएगा आप लोग को। सो ओके, यदि आप लोग को क्रैमर रूल नहीं पता है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट नहीं पता है, तो नो डाउट, क्योंकि आज हम लोग का स्टार्टिंग है, मैं नहीं चाहता हूं कि किसी को भी डाउट रहना चाहिए कोई भी क्लास में, ठीक है। सो जो भी पढ़ाई छूट गया है या जो भी है, नो डाउट आप लोग को मैं बता रहा हूं। तो देखिए कि सपोज दैट आपके पास कोई 3 इक्वेशंस है, सपोज दैट यू हैव 3 इक्वेशंस, ओके, आपके पास 3 इक्वेशन है, मैं अभी 3 इक्वेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, देख सकते हैं, I1 है, +3 I2 है, और +4 I3 है, इज इक्वल टू 40, ओके। नाउ I1 है, +2 I2 है, +I3 है, इज इक्वल टू 7। नाउ नेक्स्ट वन, 2 I1 है, +I2 है, और +2 I3 इज इक्वल टू 2, ओके। अब आपसे कहा जाता है कि चलिए निकालिए I1, I2 एंड I3 का वैल्यू, ठीक है। तो 3 इक्वेशन है, तो ऐसे तो आप लोग जो है कि बहुत सारा मेथड है,
है ना, बहुत सारा मेथड है। लेकिन यदि हम लोग क्रैमर रूल से बनाते हैं तो मैट्रिक्स मेथड से इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस वी जस्ट रिप्रेजेंट, फर्स्ट यू रिप्रेजेंट इन द मैट्रिक्स फॉर्म। पहले आप लोगों को क्या करना है कि मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखना है। क्या करना है? इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं, उसके बाद मैं सबसे पूछूंगा। ठीक है, तो जस्ट रिप्रेजेंट इन द मैट्रिक्स फॉर्म, इसको हम लोग क्या करेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म कुछ नहीं है, सबको पता है। हम लोग पहले क्या लिख देंगे, देख सकते हैं, I1 का 1 1 2, I2 का लिखते हैं 3 2 1, नाउ 4 1 2। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? सिंपल I1 I2 एंड I3। और ये क्या है? 14 है, 7 है एंड 2। ठीक है, सबको पता होगा ये सब चीज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? क्रैमर रूल में क्या करते हैं, बता सकते हैं कि क्रैमर रूल में क्या करते हैं? ये क्या है? ये वाला हम लोग का, ये हम लोग का डेल है। क्या है ये हम लोग का डेल है। मतलब ये जो हम लोग का मैट्रिक्स डेल है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? डेल। ठीक है, मैट्रिक्स मतलब डेल इज इक्वल टू, हम लोग के पास में क्या है? 1 1 2, नाउ 3 2 1, नाउ 4 1 2, है ना। अब ये आप लोगों को आता ही होगा सॉल्व करने के लिए, बहुत बेसिक चीज है, आना भी चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारा रूल है। आप लोग कॉलम, इसको पता है ना, इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। या आप रो से सॉल्व कीजिए, या आप कॉलम से सॉल्व कीजिए, या कहीं से भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये पहला वाला पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है? ये कौन सा एलिमेंट है? 1 1। कौन सा एलिमेंट है? 1 1। ये क्या है? 1 2। समझ में आ रहा हो ना? 1 2 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम। ये क्या है? पहला रो तीसरा कॉलम, 1 3, है ना। तो 1 1 मतलब जब हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या होता है? माइनस, ये आप लोग को पता होगा, I प्लस जे। आई का मतलब रो होता है, जे का मतलब कॉलम होता है। तो ये जो 1 1 का मतलब क्या आ जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या? 1 2 मतलब ऑड हो जाएगा, -1 का, ये माइनस हो जाएगा। तो हम लोग कोई भी रो को उठा करके मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट को। ये मैंने 1 को ले लिया हूं, तो 1 को जब लेता हूं तो क्या करता हूं? इसको ढक देना रहता है सामने को, है ना, और इसको ढक देना रहता है। तो क्या बचा? 2 1 2 बचा, 2 1 1 2। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? जब हम लोग -3 को लेंगे, -3 को, तो -3 को जब हम लोग लेंगे तो क्या करते हैं? इसको सामने, इसका नीचे को ढकेंगे, इसका सामने को ढकेंगे। ठीक है, सबको क्लियर होगा। लेकिन फिर भी कोई ऐसा भी होगा जो बाय चांस नहीं पड़ा होगा, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर जो भी होगा सबको समझ में आना चाहिए। कोई एक ऐसा भी बंदा होगा जिसको हो सकता है कि ये नहीं आए, ठीक है, तो मैं उसको भी क्लियर होगा। तो यहाँ पर क्या? -3, तो -3 -3। ठीक है, तो -3, तो इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, इसको ढक दिए और इसको ढक दिए। यहाँ पर कुछ डिलीट हो गया क्या? ओके, 1 सर। हाँ ठीक है ठीक है, ये ढक दिए, ये ढक दिए, तो 1 1 2 2। ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आज, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा बंदा हो जिसको लगे कि सर बता दिए, पार कर दिए। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, डेलीगेट रो कितना वैल्यू आएगा, किसको बताएगा? इसको तो सॉल्व करके सबको मल्टीप्लाई आता है, इधर से मल्टीप्लाई, -8। 8 8 आएगा, देखते हैं। तो दोनों 4 -8। 9 सर। -9 सर। -9। -9 आएगा भाई, अभी भी गलती कर रहे सॉरी हो। सर, -9 आएगा, सॉरी सर। सॉरी नहीं चलेगा, सॉरी नहीं चलेगा यहाँ पर। यहाँ पर छोटा सा चीज के लिए सॉरी नहीं चलेगा, यहाँ पर आंसर चाहिए हमको। ठीक है, सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, ये सॉरी वर्ड बहुत खराब है। पढ़ाई में सॉरी सॉरी नहीं चलेगा। ठीक है, पढ़ाई में कोई सॉरी नहीं, एकदम एग्जैक्ट आंसर बताओ। ओके, सो नाउ ये हम लोग का डेल निकला है बाबू। तो डेल 1 यदि हम लोग निकालते हैं तो क्या करते हैं? जब डेल 1 का निकालते हैं तो देख सकते हैं, ये जो मैट्रिक्स देख रहे हो, इसको हम लोग पहला कॉलम में, एक मिनट, पहला कॉलम में रख देंगे। जब हम लोग डेल 1 लिखेंगे तो हम लोग इसको क्या करेंगे? पहला कॉलम में रखेंगे, 14 7 2, और बाद बाकी को जैसा है वैसा ही रखेंगे, 4 1 2। ओके, चलिए सॉल्व कीजिए इसको, डेल 1 को फटाफट। फिर डेल 2 जब बोलेंगे तो कहां रखेंगे? 2 पे रखेंगे, और पहला वाला जैसा का तैसा ही रखेंगे, 14 7 2 4 1 2। सॉल्व कीजिए इसको, डेल 3
डेल 3 का मतलब 3 पे रखेंगे, पहले का जैसा का तैसा ही रहेगा। 3 2 1 4 1 2, गलत लिख दिया ना, ये हो गया 14 7 2। ओके, सो नाउ सॉल्व, जल्दी से बताइए इसको क्या होगा वैल्यू। जब ये निकल जाता है तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल, अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल अकॉर्डिंग टू क्रैमर CRAMER क्रैमर रूल क्या होता है, I1 इज इक्वल टू डेल 1 बाय डेल, I2 इज इक्वल टू डेल 2 बाय डेल, एंड I3 इज इक्वल टू व्हाट, डेल 3 बाय डेल। तो ये जो I1 डेल 1 डेल 1 डेल 2 इससे 100 का वैल्यू निकालिए और फटाफट अकॉर्डिंग टू जस्ट हम लोग अप्लाइंग द क्रैमर रूल, क्रैमर रूल से हम लोग सिंपली करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्चुअली हम लोग को जब लूप मेथड मेश एनालिसिस में जब हम लोग डिफरेंट हम लोग मेश का यूज करेंगे, वहां पर जब हम लोग का 3 लूप आ जाएगा तो हम लोग 3 इक्वेशन निकलेगा करंट का। जब 3 इक्वेशन निकल जाएगा तो हम लोग क्रैमर रूल से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग डेल 1 डेल 2 डेल 3 का वैल्यू बताइए फटाफट। मैं जिससे पूछ रहा हूं अंकित राउत, डेल 1 डेल 2 डेल 3 का वैल्यू क्या आया? अंकित राउत सर सॉल्व ही कर रहे हैं। अभी तक सॉल्व भी कर रहे हैं। आलोक दास, आलोक दास डेल 1 का वैल्यू कितना आया? अविनाश दुबे, अविनाश दुबे, यहां पर ज्वाइनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि बस मोबाइल में ज्वाइन कर लिए हो और घूम रहे हो मार्केट। ठीक है सर, सॉल्व करके सर बता रहा हूँ। हाँ, हमको सबका रिस्पॉन्स चाहिए। मैं 3 बार पूछूंगा किसी का भी नाम, यदि यस नो नहीं किया तो मैं उसका अटेंडेंस काटूंगा। ठीक है, ये नहीं कि पॉकेट में रखे हो मोबाइल घूम रहे हो बाजार, वैसे नहीं चलेगा। हम जिससे भी पूछेंगे 3 बार पूछेंगे, नहीं पढ़ रहा कि हाँ ना कुछ भी बोलना पड़ेगा। श्रेया भारती सॉल्व हुआ? श्रेया भारती, श्रेया भारती सॉल्व हुआ? सुमन सिंह सर अभी सॉल्व कर रहे हैं। कर रही हो, ठीक है। सुमन सिंह, डेल 1 का वैल्यू आएगा 18, देखो मिलाओ, इसका आएगा -36 और डेल 3 का वैल्यू आएगा -9। बस यहाँ पर पुट कर देना है, आ गया आंसर। 18 बाई -9 इज इक्वल टू -2 एम्पियर। डेल 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -36 बाय क्या है -9 इज इक्वल टू -4 एम्पियर। ठीक है, करो इसको, हो गया ना? एक मिनट और फिर I3 इज इक्वल टू निकाल लो तो भी आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, तो समझ में आ गया ये क्रैमर रूल कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे सर्किट्स में क्रैमर रूल का यूज करके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं, चेक कर लो इसको। 6 आ रहा शायद डेल 1 का। सर सही है सर। अरे भाई 6 कैसे आएगा, जब यहाँ पर 18 आया है तो 18 बाई 9 कितना होता है? 9 दूनी 18, 6 कहां से लिखोगे? अंदर का सॉल्व करके कैसे सॉल्व करके आएगा, चेक करो, चेक करो। सर 18 ही आया सर। 18 ही हाँ, आएगा, 18 18 ही आएगा ये बाबू, किससे सॉल्व 6 कर + रहे हो? 12। ठीक है 18 हाँ ही सर, आएगा, 18 आया है। थोड़ा माइनस नहीं आ रहा प्लस। सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सर, देखो ठीक है, ओके ओके, माइनस प्लस का थोड़ा सा ध्यान दो, माइनस प्लस का ध्यान दो। ठीक है, इसमें क्या होता है डिटरमिनेंट में, तो वही माइनस प्लस में ही तो सब गड़बड़ाते हो। 11 12 में क्या होता है, इसी में तो सबका गड़बड़ होता है, माइनस प्लस। डिटरमिनेंट जब भी सॉल्व करते हो तो माइनस प्लस ही तो सबसे मेन फैक्टर रहता है, वहीं पर तो ध्यान नहीं रहता है, माइनस प्लस सब कोई गड़बड़ कर देते हो। ओके, तो ठीक है, तो हम लोगों ने देखा केसीएल केवीएल और केवीएल, फिर हम लोगों ने साइन कन्वेंशन रूल्स को भी देखा, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा भी हम लोग सर्किट देते हैं बनाने के लिए, तो जिसमें हम लोग अभी अप्लाई करेंगे केवीएल को, और उस केवीएल से फिर हम लोग मैट्रिक्स मेथड से ही जो कि सॉल्व करेंगे। सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन द क्वेश्चन।
सी है। सो मैं पहले क्या कर रहा हूँ ना कि सर्किट को ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम लोग भी सब कोई सर्किट को ड्रॉ करो। ये एक हो गया, मैं वैल्यू को भी लिख रहा हूँ, पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सर्किट को। ठीक है, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर में तो सारा सिलेबस में तुम लोग का ये सब भी है ना। तो लेकिन तुम लोग तो लॉकडाउन वाला प्रोडक्ट है ना, इसीलिए दिक्कत है। असाइनमेंट छाप जरूरत है सर। हाँ, तो रिवीजन हम कर देंगे। देखो अब हम कोई लापरवाही नहीं कर रहे, अब सारा चीज सिखा रहे हैं, तुम लोग सीखो, ठीक है। क्योंकि देखो डिप्लोमा से बीटेक कर रहे हो, अब नहीं सीखेगा तो इंजीनियरिंग का सारा डिग्री ले लिया। इसीलिए सब मन लगा करके सीखो, मैं सारा चीज बता दूंगा ना नेटवर्क का। तो देखो यहाँ पर मैंने सर्किट दे दिया यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हो 20 वोल्ट है, एक बार मिला लो, 5 ओम है, ठीक है, 3 ओम, 5 वोल्ट, ये 4 ओम, ये 5 सर। वोल्ट। हाँ एक मिनट रुको, क्वेश्चन पूरा करने दो। 2 ओम हो गया, 5 वोल्ट हो गया, 8 ओम हो गया, 30 ये वोल्ट, 30 वोल्ट हो गया। सो ये तो पता ही है पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसके लिए कोई डाउट नहीं है। और ये वाला पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। हाँ बोलो। सर आपका कैमरा ऑफ है। क्या बोल रहे हो जो तो ये दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। नो सर। Yes, दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। भाई मैं तो चौंक, करो ना। तुम क्या करो, मोबाइल को देखो, मोबाइल को देखो, मोबाइल को थोड़ा सा ये करो, उसको सेट करो। भाई मैं तो चौंक गया कि बोलता कि दिख ही नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि यार मैं तो हमसे पागल जैसा पढ़ा है क्या। वही ना, इसीलिए देखो मैं शुरू में ही पूछता हूँ कि विजुअल है, साउंड आ रहा है, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि मैं पढ़ा दिया हूँ और किसी को सर आ दिखाई गया नहीं। सर। हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा, ठीक है। तो अब दिख रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिटरमाइन द करंट supplied by each battery, है ना। मतलब सारा करंट निकालना है भाई एकदम, है ना। तो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि चलो चलो सपोज दैट तुम ये I1 लिया है, ये मोशन ले लिया हूँ, ठीक है। सपोज ये I2 लियो, चलो ये मोशन ले लिया हूँ, ठीक है। सपोज ये I3 ले, चलो ये मोशन ले लिया हूँ, ठीक है। ये मैं हिंट दे दिया हूँ, ठीक है। अब तुम लोग लूप 1, ये सपोज दिस इज लूप 1, सपोज दिस इज लूप 2, नाउ दिस इज द लूप 3, है ना। अब लूप 1, लूप 2, लूप 3 में तुम लोग केवीएल अप्लाई करो, अप्लाइंग केवीएल फॉर लूप 1, है ना। बनाओ तो इसको सॉल्व करके थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखो। अप्लाई, मैं अभी जो पढ़ाया हूं अप्लाई केवीएल, है ना, कहां पर, लूप 1 पे हम लोग पहले अप्लाई करते हैं, अप्लाई केवीएल इन लूप 1, है ना, ठीक है। तो इसको देखो एकदम मैंने जो अभी बताया साइन कन्वेंशन, कैसे हम लोग करंट के साथ में, कैसे नेगेटिव टू पॉजिटिव हम लोग बैटरी में जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं सोचना है। उसी तरह से इक्वेशन निकलेगा यहाँ पर, और तुम्हारे सामने में रहेगा कि 3 अननोन रहेगा, 3, और तुम कैसे भी सॉल्व कर दो, या तो तुम क्रेमर रूल लगाओ, या तो जनरल एलिमिनेशन मेथड लगाओ जो मैट्रिक क्लास में पढ़ चुके हो, एक्स वाई जेड फाइंड आउट करने के लिए, कुछ भी लगाओ। लेकिन ये तुम्हारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि क्रेमर रूल ही लगाना, मैंने एक मेथड को बता दिया बस, कि तुम लोग थोड़ा कुछ एडवांस मेथड भी जाना करो, तो मैंने बस वो मेथड को बता दिया। सो के अप्लाई केवीएल इन लूप 1। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, तुम लोग देखो ट्राई करो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, एकदम आराम से पढ़ोगे, एकदम आराम से स्मूथली। ये है करंट, मोशन जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, करंट देखो हम लोग, देखो ये देखो हम लोग करंट भी इधर ही मान लेते हैं, करंट भी इधर ही है ना, करंट भी इधर ही है, करंट भी इधर ही है, और डायरेक्शन भी उधर ही जा रहे हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 I1, ध्यान देना, अब ध्यान देना, ठीक है।
यहां पर बढ़ो, यहां पर ये तुम लोग नीचे ऐसे जा रहे हो, नीचे ऐसे जा रहे हो, देखो ध्यान से ऐसे जा रहे हो, ओके। तो यहाँ पर I1 करंट देखो, देखो करंट का डायरेक्शन देखो ऐसे ही है ना। लेकिन इस 3 ओम पे क्या I1 करंट ही है कि इधर बगल वाला करंट भी है I2? तो I2 का डायरेक्शन देखो उल्टा हो गया, देखो उल्टा हो गया, ये I2 का डायरेक्शन हो गया, I2 का। तो I1 में I1 का डायरेक्शन जब इधर लिए हैं तो I2 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 3 लिख सकते हैं ऐसे 3 I1 माइनस I2, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो नेट करंट होगा I1 में से I2 माइनस हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो -5 = 0। बताओ यहां तक किसी को भी डाउट हो रहा है? अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, तो देखो -5 I1 -3 सर I1। I2 माइनस कैसे हुआ सर? ये देखो ये इधर इधर तुम्हारा I1 है और इधर जा रहा I2 है ना, तो I1 से अपोजिट डायरेक्शन हुआ ना, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना। ओके, वेरी गुड, समझ में आ रहा है सबको? इसको सॉल्व करके लिखो 8I1 -3I2 = 15। देखो 1-2 दिन या 1 सप्ताह तुम लोग को दिक्कत होगा, है ना। अब फिर जब धीरे धीरे तुम लोग किताब उताब पढ़ना शुरू कर दोगे और अपना पढ़ने का ध्यान तो आ जाएगा, तो देखना तुम लोग को पूरा अच्छा लगेगा, पूरा मन लगेगा पढ़ने। अभी थोड़ा सा इधर उधर काउंसलिंग फाउंसलिंग इस चक्कर में पढ़ाई लिखाई इधर छोड़ दिया, जो भी है, ठीक है, जो भी कारण है। लेकिन देखना तुम लोग अभी जो हम लोग के साथ में जुड़ गए हो, क्लास जो है कि हम लोग का खासकर दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में एकदम डी, हम लोग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में क्लास का कोई कमी नहीं है, सारे फैकल्टी लोग पूरा भर भर के पढ़ाएंगे तुम लोग को, एकदम अच्छा से सीखना है बस, ठीक है। टारगेट अभी से लेना है कि कुछ कर जाना है लाइफ में, टारगेट अभी से लेना है कि कुछ कर जाना है। देखना अभी से यदि मन लगा के पढ़ोगे ना तो एकदम अच्छा जगह जॉब भी हो जाए, गवर्नमेंट जॉब, उसके लिए एकदम पूरा टारगेट लेके पढ़ाई करना है। टारगेट के बिना कुछ नहीं होता लाइफ में। बस सोचोगे कि बस हम अभी पॉलिटेक्निक में पॉलिटेक्निक से डिग्री ले रहे हैं तो बस डिग्री लेके घर में रहोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मेरा बात थोड़ा थोड़ा खराब लग जाता है किसी को, लेकिन क्या करेंगे, ये जो सच्चाई बताना पड़ता है बच्चों। ये लूप 2 में आएंगे, तो अब लूप 2 को बताइए आप लोग, फिर लूप 3 को बताइए आप लोग, फिर करंट बंद निकालिए, ठीक है, हो जाएगा आसानी से। लूप 2 में भी कुछ नहीं है, यदि हम लोग एकदम ऊपर से बढ़िए हमेशा ना, यदि गड़बड़ नहीं करना है तो एकदम यहाँ से बढ़िए, खाली जगह से यहाँ से बढ़िए 4, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -4I कहाँ गया भाई I2, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव +5, फिर नीचे जाएंगे इधर से, एकदम एकदम घूम रहे हैं एकदम इधर से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -2, कौन सा करंट है भाई? I2 है, और इधर से क्या जा रहा है? I3 जा रहा है। ध्यान से देखते जाइए आप लोग, कॉपी में बनाते जाइए। वोल्टेज देखिए माइनस से प्लस जा रहा है तो +5 हो जाएगा। फिर हम लोग घूमते हुए इधर जा रहे हैं तो फिर बैटरी क्या है? माइनस से प्लस है तो +5 हो जाएगा। फिर इधर आगे बढ़ रहे हैं तो इधर 3 है और I2 अब पहले होगा और -I1 होगा, इधर से जहाँ घूम रहे हैं हम लोग, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए थोड़ा सा, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो 4 दिन धीरे ही चलेंगे हम लोग, ठीक है, बाद में फास्ट हो जाएंगे, बात अलग है। शुरुआत धीरे से ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे ही चलो लेकिन कंटिन्यू बना के रखो। कहने तो जानते हैं ना, खरगोश और कछुआ का चाल, लाइफ भी वही है। ऐसा नहीं बोलेंगे फास्ट चल के रुक जाओ, लेकिन डेली अपडेट करो। डेली अपडेट करोगे तो सारा चीज, 2 ही क्वेश्चन बनाओ लेकिन डेली पढ़ो, ये नहीं कि एक दिन भर भर के पढ़ लिया और 10 दिन सो गया। देखो मैच करा इसको, देखना यही आएगा, ठीक है। सर नहीं आया क्या? लूप सर आया था, लूप 1 में तो -15 हो जाएगा ना? लूप 1 पे -15 होगा ना, क्योंकि 20 -5 तो वो 15 हो जाएगा, और जब वो उधर जाएगा तो -15। अच्छा माइनस होगा, लिख दो माइनस। नहीं सर, ठीक है सर। नहीं सर ठीक है सर, नहीं सर ठीक है नहीं सर, सर। सही है, -8 से सही है सर। वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। माइनस सर, माइनस टोटल की सही है जगह सर।
सही है, माइनस नहीं होगा भाई, दोनों इक्वेशन क्योंकि सही है सर। दोनों, ये तो माइनस माइनस था, माइनस 15 था, तब ना कॉमन निकाल लिए। ठीक है, सही है, करेक्ट। अरे भाई देखो ना, माइनस माइनस और माइनस 15, तो माइनस कॉमन निकाल लिए ना, प्लस हो गया सर। ठीक है, वही मैं देखना चाहता था कि कौन ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है। मैं इसीलिए जो बोली ना मैं कर दिया, मैं देखना चाहता था कि कोई उसको टोक रहा है कोई, हमको अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है कि तुम लोग ध्यान दे रहे हो। तो अप्लाई केवीएल लूप थर्ड में, लूप थर्ड में भी हम लोग केवीएल को लगा देते हैं। ठीक है, बनाते जा, कोई धीरे भी बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, स्पीड हो जाएगा। मैं बोला ना कि एक सप्ताह, ज्यादा से ज्यादा एक सप्ताह में तुम लोग का स्पीड बढ़ जाएगा। 8 कहाँ गया देख लेते हैं, कुछ गलती नहीं होना चाहिए। 8I3 आगे बढ़ते हैं, माइनस क्या 30 वोल्ट ही है ना क्वेश्चन में, 30, फिर आगे बढ़ते हैं, ये -5 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं 2I3 -I2 हो जाएगा, और कुछ है क्या देख लेना, कहीं कुछ छूटेगा तो बता देना आपको। तो 10 हो गया, 10I3 हो गया, 2I2 हो गया प्लस 2I2, ठीक है, 2I2 माइनस 10I3, 30 मार्क्स 35, 35 उधर चल गया, पॉजिटिव हो गया, और ये 2I2 माइनस 10I3 इजिकल टू 35। हमको लग रहा सही है। तो 1 2 3 तुम्हारे पास 3 इक्वेशन आ चुका है, 1 2 3 है ना। अब तुम जैसे भी तुम्हारा हो, हम तुमको नहीं बोले कोई मेथड लगा के सॉल्व करो, बस यू जस्ट सॉल्व, फाइंड आउट I1, फाइंड आउट I2 एंड फाइंड आउट I3। ठीक है, सो राहुल टेक ए स्क्रीनशॉट, ये 45 जो दिख रहा है स्क्रीनशॉट ले लो, और नाउ ज्वाइन अगेन ऑल ऑफ यू। तो यहाँ तक 45 जो है उसका पहला क्लास का अटेंडेंस बन गया। ठीक है, अब मैं फिर से जो ज्वाइन कराऊंगा अभी, उसमें यदि कोई भी कम होगा तो सेकंड पीरियड में उसका अटेंडेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलो ये I1 I2 I3 को फाइंड आउट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और तुरंत ज्वाइन करो, ज्वाइन इमीडिएटली। ठीक है, तो देखो I1 I2 एंड I3, इसका वैल्यू को निकालो, कितना हो रहा है सब कोई थोड़ा सॉल्व करो। हाँ, कैलकुलेटर खरीद लो, तो नहीं खरीदे तो ऐसे लेटरल जितना भी होगा सबके पास कैलकुलेटर होगा ऑटोमेटिकली। तो I1 I2 एंड I3 ये कितना होगा, इसका वैल्यू को फाइंड आउट करो फटाफट। ओके, ज्वाइन करो फिर से।